Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello जी, कैसे हो आप? बढ़िया. So I hope all of you are doing चंगा. Right now तो हम जर्नल के एक्सप्लेनेशन में जाने वाले हैं. आज मैं आपके हाथों को इतना थामने वाला नहीं हूँ, क्योंकि माँ बाप को अपने बच्चों का हाथ कभी ना कभी छोड़ देना है जब वो बच्चे अपने पैरों पर चलना सीख जाए. यहाँ पे मैं ऐसे एनालॉजी में क्यों बात कर रहा हूँ? सिंपली बिकॉज पीडी हो, सीडी हो, जीएसटी हो, हमने काफ़ी समय से इसका प्रैक्टिस कर लिया है, और आज के प्रॉब्लम में मैं किसी डायग्राम के माध्यम से आपकी हेल्प नहीं करने वाला. स्ट्रेट फॉरवर्ड ओरली एक्सप्लेनेशन दूंगा, विच आई होप एंड एक्सपेक्ट कि आपको समझ आएगा. ओके, चलिए जी, टूट पड़ते हैं. बाकी ये कहानी पुरानी है और पुरानी कहानी के पात्र आप जानते हो. ये आज की हमारी नई कहानी. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स. तो टीवी, कंप्यूटर्स, मोबाइल, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान. 2018 अप्रैल 1. विशाल मालिक होगा. कमेंस्ड बिजनेस की शुरुआत की कैश के साथ डेबिट, फर्नीचर के साथ डेबिट, और बिल्डिंग, क्योंकि ये सारी चीज़ें आ रही है. डेबिट व्हाट कम्स इन, और जो टोटल होता है वो कैपिटल होता है. अगर कभी लाइबिलिटी आए तो एसेट माइनस लाइबिलिटी करके भी कैपिटल मैं और आप ढूंढ सकते हैं. तो अभी के लिए तो मैं ये जर्नल एंट्री जो पहला वाला है वो आपके लिए लिख देता हूँ. कैश डेबिट, फर्नीचर डेबिट और बिल्डिंग डेबिट, टोटल करके कैपिटल. क्योंकि अगर आप विशाल को पूछो, अरे विशाल मैंने सुना तूने नया दुकान स्टार्ट किया, कितना तूने इन्वेस्टमेंट किया, तो विशाल बोलेगा देखो भाई ना, जैसा अपना नाम है विशाल, कैश भी दिया मैंने, फर्नीचर भी दिया मैंने, बिल्डिंग भी मैंने दिया, टोटल कर लो, ये मेरा कैपिटल. अगला, परचेस्ड मोटर कार इज डेबिट व्हाट कम्स इन. गुड्स नहीं बोलना, परचेस मत बोलना. ओके, परचेस का मतलब गुड्स होता है. मोटर कार फ्रॉम होंडा कंपनी. यस, मतलब होंडा कंपनी मेक्स मोटर कार्स. बाय चेक मतलब तूने पैसा दिया, 55,000 एट 18% जीएसटी. अच्छा, तो CGST SGST 99% आ जाएगा. नॉट कॉम्प्लिकेटेड, एंड इनफैक्ट वी हैव मल्टीपल टाइम्स हैंडल दिस, बहुत बार किया है. मोटर कार इज इनपुट, क्योंकि आप खरीद रहे हो. ओके, और इसके ऊपर दोनों जीएसटी आएंगे जो 99% होंगे. ये वाले क्वेश्चन में 4950. आपने चेक से पेमेंट किया तो बैंक,
being motor car purchased from Honda company. If you don't pay तो आपको Honda कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा बैंक के जगह पे Honda कंपनी का नाम, because then it becomes a credit transaction. Again, किया तो बहुत बार है हमने इसके पहले. आज ये वाले क्वेश्चन में काफ़ी हद तक हम रिपीटेशन कर रहे हैं, रिविजन. 5 तारीख, पेड इंश्योरेंस ऑफ द अबाव कार 3000 टू यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने जब गाड़ी खरीदा तो सिर्फ गाड़ी की कीमत आपने नहीं भरी, उसका रजिस्ट्रेशन आपको देना पड़ता है, उसके जो भी इंश्योरेंस का पेमेंट है वो आपको देना पड़ता है, और यहाँ पे जैसे है इंश्योरेंस, ओके. उसके अलावा रोड टैक्स होता है वो आपको देना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें ऐड करके गाड़ी का एक प्राइस आता है. तो उनका कहना है कि एक दिन बाद आपने इंश्योरेंस भरा, कितने का? 3000. वेरी इंपॉर्टेंट, इंश्योरेंस प्लीज मत लिखो नॉमिनल, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. गलत. क्यों? क्योंकि ये गाड़ी का इंश्योरेंस है. गाड़ी के प्राइस में आप इसे ऐड करें, गाड़ी के प्राइस में आप इसे ऐड करें ताकि आपको टोटल गाड़ी का प्राइस मिल सके. ऐड कैसे करें? मोटर कार पहले डेबिट था 4 तारीख को, तो 5 तारीख को भी मोटर कार डेबिट करो. इंश्योरेंस डेबिट मत लिखना. क्यों ना लिखिए? आई रिपीट माई सेल्फ, जब भी आप कोई एसेट खरीदो और खरीदने पर आसपास अगर कोई खर्चा हो उसको इस एसेट में जोड़ दो, क्योंकि वो आसपास का खर्चा इसलिए हुआ है क्योंकि ये एसेट आपने खरीदा है. तो कैसे जोड़ दूँ? डेबिट करो, उस एसेट के नाम को आप दोबारा डेबिट करो. सो ऑन 5th you are adding insurance in the motor car. How do you do that? You don't write insurance, you write motor car. Motor car debit to cash. अगर आपको 5 तारीख के बाद कोई भी पूछे how much did you buy the motor car in, then you will say, see, 4th का motor car is 55,000, 5th का motor car is 3,000, total 58,000, total 58,000. That is what you do. इंश्योरेंस अलग से मत लिखना. कोई भी एसेट आप खरीदो उसके परचेस के संबंध में कोई लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन ऐड कर लो. प्लस प्लस प्लस. 10 तारीख, पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. पैसे दिए जी, और आप क्या दोगे? बैंक रिसीवर है 10 तारीख को और पैसे बाहर जा रहे हैं. सो अबाउ मी द वेरी सिंपल एंट्री ऑफ बैंक टू कैश, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. 12 तारीख, पेड फॉर सैलरी, खर्चा, एंड रेंट. दोनों खर्चा है जी, दोनों खर्चा है, आप दोनों को डेबिट कर लो. सैलरी डेबिट 10,000, रेंट 3,000, दोनों 13,000. बीइंग सैलरी एंड रेंट पेड. वो चेक से होता तो बैंक लिख देते, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जीपे तो बैंक लिख लेते. 15, बॉन्ट गुड्स फ्रॉम राजेश, परचेस 80,000 एंड पेड हिम 1/4 अमाउंट इमीडिएटली. कोई डिस्काउंट नहीं है, आपने 80,000 का परचेस किया तो वो आप बेहिचक डेबिट करो. परचेस को 80,000 डेबिट करो बिकॉज देयर इज नो डिस्काउंट. 1/4 कैश दिया तो यू हैव टू कैलकुलेट 1/4 ऑफ 80,000 मल्टीप्लाई. कैश गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 20,000. बाकी का क्या? आपने नहीं दिया, कब दोगे? बाद में दूंगा. हाँ, तो तुमको नाम याद रखना पड़ेगा. राजेश का नाम 60,000 के लिए, बिकॉज यू हैव टू पे हिम इन फ्यूचर. ये भी पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट, उधारी, बट सिंपल है क्योंकि इसमें ट्रेड डिस्काउंट 1/3 1/4 ऐसा कोई बवाल नहीं है. ओके. अठारह, कैश सेल्स. सिंपल मतलब पैसा आया, सेल्स किया, पैसा आया डेबिट,
सेल्स इज क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, गुड्स जो दुकान हर दिन बेचता है। 60,000 5% का जीएसटी। आप अगर कुछ खरीदो तो इनपुट, कुछ बेचो तो आउटपुट, ये आउटपुट है और आउटपुट पे आउटपुट का टैक्स लगेगा, आउटपुट पे आउटपुट का टैक्स लगेगा। तो जी आउटपुट का टैक्स से हम शुरू करते हैं। 18 तारीख को कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स, चलो उसके बारे में कोई डाउट नहीं है, बट द क्वेश्चन इज कितना आया वो तो मुझे भी नहीं पता, तो चलो थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। क्या किया, सेल्स किया, क्रेडिट दी इनकम्स एंड गेन 60,000 एंड क्योंकि ये आउटपुट है दुकान का आउटपुट, तो इस पे आउटपुट जीएसटी लगेगा 2.5% के हिसाब से 1500। सो द टोटल कैश इज इक्वल टू द टोटल क्रेडिट विच इज 63,000 बीइंग गुड्स सोल्ड एट 5% जीएसटी। 18th का भी हमने डन किया। 20 रिसीव्ड, पैसा मिला, रिसीव्ड, रेंट मिला, कमीशन मिला, तो रेंट एंड कमीशन कमाई है क्योंकि रिसीव्ड है ना। अगर खर्चा किया होता तो मैं बोलता आपको कि खर्चा है, ओके खर्चा है, ये वाला कमाई है। टोटल 5,000, रेंट का 1,000 और कमीशन का 4,000। ये नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। 25th को आपने टेलीफोन के चार्जेस 1500 दिए, टेलीफोन चार्जेस खर्चा दिखेगा तो डेबिट करो, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथ में, मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछने की ज़रूरत नहीं है। खर्चा दिखा तो डेबिट करो। द ओनली क्वेश्चन इज़ वो खर्चा भरा कैसे, वो खर्चा भरा कैसे, तो उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर सकते हैं, बट अदरवाइज बिंदास। 27th इनवॉइस्ड गुड्स, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। इनवॉइस्ड, सर क्या हुआ, गुड्स आया गुड्स गया। टू कतरीना, अच्छा समझ में आ गया, ओके समझ में आ गया, गुड्स दिया हमने। फॉर कैश, गुड्स दिया पैसा लिया, गुड्स दिया पैसा लिया, तो कैश इज कमिंग इन डेबिट, गुड्स इज गोइंग आउट, सेल्स क्रेडिट, बट उसके ऊपर 5% का जीएसटी है। ओके चलो कर लेते। सो कैश इज कमिंग इन, कतरीना का नाम हाउएवर गुड इट में साउंड, क्या करना है हमको तो हमारा पैसा मिल गया। सेल्स इज 75,000 अपॉन विच इज द आउटपुट, देयर इज आउटपुट टैक्स 2.5%। नाउ द टोटल 1 2 3 इज कैश अकाउंट 78,750, वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डिड अबाउ ना। 18 तारीख को जो किया ना, ऑलमोस्ट सेम से। बीइंग goods sold to Katrina, whatever you want to call, at 5% GST. So this is 27th, little bit same to 18th. 29th, सुनीता, हम लोग नहीं है, bought goods from us, अच्छा सुनीता हमसे खरीद रही है, हम बेच रहे, सेल्स, हम बेच रहे, सेल्स 45,000 at 5% GST. Now please note very importantly, you're selling but they have never or nowhere mentioned 29 कि सुनीता ने पैसा दिया, इतना ही बोला, सुनीता ने हम लोग से गुड्स खरीदा, इतना है जीएसटी। सो दिस इज अ नॉन कैश, इसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नॉन कैश इसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो इसमें सुनीता का नाम लिखना पड़ेगा, सुनीता का नाम लिखित में लिखना पड़ेगा, सुनीता डेबिट। बट अमाउंट कितना है, देखो आपने सेल्स कितने का किया 45,000, अभी क्योंकि ये आउटपुट है, आउटपुट जीएसटी इसके ऊपर आएगा, जो रेट है उसका हाफ 2.5 1125 ऐड करके आप कैश में डाल दो एंड देन अपनी जर्नल एंट्री की कहानी को आप थोड़ा बढ़ा लो। बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुनीता एट 5% GST। एंड लास्ट 30th पेड फॉर प्रिंटिंग 17,000, प्रिंटिंग खर्चा होता है जी, ओके, बाय डेबिट कार्ड ऑफ SBI, कोई भी बैंक का डेबिट कार्ड हो, बैंक से पैसे गए तो वो लिख देते हैं प्रिंटिंग डेबिट टू बैंक। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कभी लिखना मत ना, गूगल पे वो सब कुछ लिखना मत, क्योंकि वो कभी लिखना नहीं होता। ओके, ग्रैंड टोटल मेरे सिर के ऊपर आया 6,63,400।
दिस चैप्टर इज लाइक हाफ डन, हाफ बाकी है, द मोर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बाकी है। आने वाले समय में मैं वो भी कंप्लीट कर लूँगा। आप अपना ख्याल रखिए और आपके समय के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आगे जल्द मिलेंगे एक और क्वेश्चन के साथ में। अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए और नोटिफिकेशन के बेल को भी। और अगर आप पुराने हमारे मित्र हो तो शेयरिंग आप सभी के साथ जारी रखिए। जब तक मैं आपको दोबारा ना मिलूँ, आप बड़ों का, छोटों का और परिवार वालों का सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।